بچوں کا دین کیسے بچائیں۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں اور یہ ہماری ساری کی ساری محنت یہی ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہمارا کاروبار ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہماری نوکری یہ ہمارے بیوی بچوں کے لیے ہے، ہماری محنت یہ ہماری بیوی بچوں کے لیے ہے، ہماری دوڑ دھوپ یہ ہماری بیوی بچوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیویوں کے لیے وقت کا ایک لمبا حصہ لگا دیتے ہیں، ان کی دنیا سنوارنے میں، ان کو قابل بنانے میں، ان کو لائق بنانے میں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں اور ان کو دنیا میں جو ہے سینہ تان کر زندگی گزارنے میں اور ان کو باعزت ریسپیکٹڈ لائف جینے میں جو جو ہو سکتا ہے ہم ساری کی ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ان کوششوں کے درمیان ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کے دین کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں کہ بھئی میرے بچے قرآن پڑھنے آ رہا نہیں آ رہا، میرا بچہ نماز پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، میرا بچہ کہیں چوری تو نہیں کر رہا ہے، میرا بچہ، میرا نوجوان بیٹا کہیں سگریٹ کا عادی تو نہیں بن رہا ہے، میرا نوجوان بیٹا دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں گھٹکے کا عادی تو نہیں بن رہا ہے، اور میرا بیٹا کہیں غلط صحبت میں تو نہیں جا رہا ہے۔ ہم فکر کر رہے ہیں، لیکن جتنی فکر کر رہے ہیں، جیسے فکر کرنا چاہیے، جس انداز کی فکر کرنا چاہیے اور جو ماحول دینا چاہیے، جو سہولتیں فراہم کرنا چاہیے، اس میں ہم لوگ کما حق ہو اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو یاد دہانی ہو جائے، کیوں یہی بچے ہمارا سرمایہ ہیں، یہی بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہیں، یہی بچے ہمیں مرنے کے بعد دعائیں دینے والے ہیں۔ تو ان بچوں کی دنیا کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی فکر بھی اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو ہم بھی کامیاب اور ہمارے بچے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کیوں کہا کہ بچوں کا دین کیسے بچائیں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بوتل میں پانی جس طرح صاف و شفاف ہے، صاف ستھرا ہے، اور اس بوتل میں جس طرح پانی پاک صاف ہے، اس سے بھی لاکھوں درجے زیادہ ہمارے بچے پیدائشی طور پر صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک رہتے ہیں، وہ اپنی فطرت توحید پر رہتے ہیں، وہ ہر قسم کے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، اس جو ہے بچے کے ماں باپ، یُحَوِّدَانِهِ، اپنی طرف سے یہودی بنا دیتے ہیں، یُمَجِّسَانِهِ، اپنی طرف سے مجوسی بنا دیتے ہیں، یُنَصِّرَانِهِ، اپنی طرف سے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور ماحول، ماں باپ، گھر سب مل کر ان بچوں کو بگاڑنے میں ایک بہت بڑا رول انجام دیتے ہیں۔ یہ بچے فطری طور پر سچے ہوتے ہیں، فطری طور پر نیک ہوتے ہیں، فطری طور پر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا سب مل کر ان بچوں کو بگاڑتے جاتے ہیں۔ تو ان کو اپنی فطرت پر باقی رکھنے کے لیے یا نکل چکے تو واپس لانے کے لیے ہمیں اب کوشش اپنی دگنی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے تو خود بخود کبھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دوں گا وہ خود بخود بہتر ہونے والا نہیں، اگر میں بیٹی کو چھوڑ دوں گا وہ خود بخود بہتر ہونے والے نہیں۔ ان کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا،
उन पर हमें तवज्जो देना पड़ेगा और उनके लिए हमें कोशिश करना होगा। क्यों? हम बच्चों की दुनिया बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों को जो है यानी वो अपने पैरों पे खड़े होने काबिल बनाना चाहिए। लेकिन ये दुनिया जो 50-60 साल की है, इस 50-60 साल की दुनिया के लिए हम इतना खर्च कर सकते हैं। मैथ्स में खर्च करते हैं, तालीम में खर्च करते हैं, इंग्लिश में खर्च करते हैं, स्कूल में खर्च करते हैं, कपड़ों में खर्च करते हैं, घर में खर्च करते हैं, गाड़ी में खर्च करते हैं। 50-60 साल की जिंदगी को स्टेबल बनाने के लिए हम इतना खर्च कर सकते हैं, तो भाई एक ऐसी जिंदगी आने वाली जो लामुतना ही है, उसका कभी खत्म होने वाला नहीं, वो एंडलेस है। उस जिंदगी के लिए हम क्यों खर्च नहीं करते? उस जिंदगी के लिए हम क्यों प्रिपेयर नहीं करते? उस जिंदगी के लिए हम क्यों तरबियत नहीं देते? ये सोचने का और इस पर गौर करने का लम्हा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और याद रखें आप, उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा वो इस्लाम कबूल करती हैं और उनके गोद में पलने वाले अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके गोद में अभी छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चे को कलमा पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने बच्चे को कलमा पढ़ाना शुरू किया तो अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मालिक जो है वो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। उन्होंने अपनी बीवी से ऑब्जेक्शन किया कि तुम क्यों कलमा पढ़ा रही हो, तुम मेरे बेटे को दीन क्यों सिखा रही हो, तुम मेरे बेटे को अल्लाह के बारे में क्यों बता रही हो, क्यों मेरे बेटे को तुम बिगाड़ रही हो। इस तरह बाप ने अपनी बीवी से ऑब्जेक्शन किया, तुम मेरे बेटे कलमा नहीं पढ़ा सकती, तुम मेरे बेटे को अल्लाह के बारे में नहीं समझा सकती, छोड़ दो उसको अपनी हालत पर। इस तरह ऑब्जेक्शन किया बाप ने अपने बेटे के बारे में बीवी से। तो बीवी ने कहा यकीनन ये बेटा तुम्हारा भी है मेरा भी है, लेकिन मैं इस बच्चे को दीनदार बनाऊंगी, इस बच्चे को अल्लाह का फरमानदार बनाऊंगी, इस बच्चे को नबी का पैरोकार बनाऊंगी, आप मुझे इस सिलसिले में रोक नहीं सकते। शौहर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं, इनको दीन नहीं सिखाना, इनको नबी के बारे में नहीं बताना, इनको अल्लाह के बारे में नहीं बताना। लेकिन बीवी ने कहा नहीं, मुझे तो इस बच्चे को जहन्नम से बचाना है, मुझे इस बच्चे को जहन्नम से बचाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अल्लाह ने कहा तुम लोग अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वअहलीकुम, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं जहन्नम से बच रही हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी जहन्नम से बचे, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा आग से बचाए, लिहाजा मैं अपने बच्चे को दीनदार बनाऊंगी। शौहर ने कहा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर ऐसा है तो मैं तलाक दे दूंगा, छोड़ दो तुमको। तो बीवी ने कहा अगर आप मुझे दीन के मामले में छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ दो, तुम्हारी कोई परवाह की बात नहीं, लेकिन मैं दीन अपने बच्चे को सिखाना नहीं छोड़ूंगी। शौहर को छोड़ दिया सिर्फ दीन की खातिर, शौहर को खैराबाद कह दिया, क्यों तुम मेरे बच्चे को दीन सिखाने से रोक रहे हो। अपने शौहर को छोड़ना गवारा किया, लेकिन अपने बच्चे को दीन से हटाना गवारा नहीं किया। यह हमारे असलाफ का जो है कारनामा है। और याद रखें, हम अपने बच्चों के दीन को बाकी रखना चाहते हैं तो याद रखो दोस्त, सबसे पहले अपने बच्चों को हमें अल्लाह का फर्माबरदार बनाना पड़ेगा। आप हमेशा अल्लाह की फर्माबरदारी करने की तालीम देंगे। क्यों? जो बच्चा अल्लाह का फर्माबरदार बन जाता है फिर उसको बहुत ज्यादा तालीम देने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद इंशाअल्लाह बेहतर बनता जाएगा। जो अल्लाह की मानता है वो माँ बाप की मानेगा, जो अल्लाह की मानता है वो बीवी को खुश रखेगा, जो अल्लाह को मानता है बच्चों को खुश रखेगा, जो अल्लाह को मानता है सही कारोबार करेगा, जो अल्लाह को मानता है ईमानदार डॉक्टर बनेगा, जो अल्लाह की मानता है ईमानदार ताजिर बनेगा, जो अल्लाह की मानता है वो हर जगह यानी नेकी के रास्ते पर चलता रहेगा और उसको नेकी के रास्ते में चलने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को अल्लाह का फरमाबरदार बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपना मत बनाओ, बेटा अब्बू की बात मानो, बेटा अम्मी की बात मानो, बेटा दादा की बात मानो, बेटा टीचर की बात मानो, बेटा मौलवी साहब की बात मानो, बेटा दादी की बात मानो, बेटा जो है फला, ये सब बोलने से पहले बेटा अल्लाह की मानो, बेटा अल्लाह की मानो। अल्लाह ये कहता है
अल्लाह का फरमानदार बनाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखें, हमारे बच्चों पर 4 मीम का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। 4 मीम का बहुत इफेक्ट होता है। पहला मीम, मां का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। मां का इफेक्ट सबसे ज्यादा इन बच्चों पे होता है। मां अगर ईमानदार हो तो बच्चे ईमानदार बनेंगे इंशाअल्लाह। मां अगर पर्दे वाली है तो बच्चे पर्दे वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मां अगर बाहया है तो बच्चे बाहया बनेंगे इंशाअल्लाह। मां अगर समझदार है तो बच्चे समझदार बनेंगे इंशाअल्लाह। मां अगर वो शेयरिंग केयरिंग वाली है तो बच्चे शेयरिंग केयरिंग वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मां अगर इज्जत देने वाली है तो बच्चे इज्जत देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मां अगर हेल्पिंग नेचर वाली है, मां अगर हेल्प करने वाली है, मदद करने वाली है, लोगों को लेकर चलने वाली है, बहनों को, मां बाप को, सास को, ससुरे को, फलां को लेकर चलने वाली है, तो सिफत बच्चों में आने वाली है। अगर मां अगर अपने जो है शौहर से लड़ने वाली, सास से लड़ने वाली, ससुर से लड़ने वाली, देवरान से लड़ने वाली, चटल अगर लड़ने वाली है, तो याद रखो बच्चे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो लिहाजा सबसे पहला असर किसका होता है? मां का होता है। उसके बाद दूसरा मीम, इन बच्चों पे असर अंदाज होने वाला वो मुअल्लिम का मीम है। सब मां के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी की मानते हैं तो मुअल्लिम की मानते हैं, टीचर की मानते हैं। अब हमने तजुर्बा किया स्कूल के अंदर कि भाई बहुत सारे तजुर्बात हमने किए। मां कहती है बेटा तुम अंडा खाओ, तो बच्चा अंडा नहीं खाता। लेकिन अगर टीचर कहे कि बेटा कल आते आते टिफिन में अंडा लेकर आना, तो मां से कहेगा कि अम्मी मुझे टिफिन में अंडा बना दो, मैं अंडा लेकर जाने वाला हूं। टीचर की बात बच्चे मानते हैं। मां कहती है कि बेटा दूध पियो, बेटा दूध नहीं पीता, लेकिन टीचर कहती है कि बेटा कल दूध पी के आना, तो जाके कहेगा अम्मी मुझे दूध दियो, मैं टीचर ने दूध पी कर आने के लिए कहा है। मुअल्लिम का इफेक्ट होता है। आज मुअल्लिम को भी ये पोर्शन को कंप्लीट करने के साथ साथ, होमवर्क को देखने के साथ साथ, उसकी जो है एग्जाम के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ, मार्क्स के साथ साथ, आज मुअल्लिम को, टीचर को भी उसके अखलाक, उसके दीन, उसके नेचर, उसके जो है तरबियत पे भी जोर देने की जरूरत है। टीचर को भी ऐसे करना होगा। क्यों? मां के बाद सबसे ज्यादा बच्चा किसकी मानता है? वो मुअल्लिम की मानता है, टीचर की मानता है। उसके बाद तीसरा मीम मीडिया का मीम है, यानी मीडिया का असर बच्चों पे बहुत ज्यादा हो रहा है। और चौथा मीम मुआशरे का मीम है, सोसाइटी का असर बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। तो लिहाजा ये 4 मीम हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और इसके साथ साथ दोस्त, आज हमारे बच्चे, इनके दीन को बचाना जरूरी है दोस्त। छोड़ दोगे ना तो हर बच्चा स्कूल में पढ़कर आने वाला जानी जानी पढ़ के पक्का आता। देखो आप, पक्का पढ़ के आता है। जॉनी वो पक्का पढ़ के आता है। क्या सिखा रहा आज स्कूल क्या सिखा रहा अपने बच्चों को? जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा, टेलिंग लाइज नो पप्पा, ओपन योर माउथ हा 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 हा। ये भी हंसता, वो भी हंसता है। पूछ रहा है बाबू कि बेटा तुम क्या खा रहे हो? जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर, शक्कर खा रहे हो? नहीं पप्पा। झूठ बोल रहे हो? नो पप्पा। ओपन योर माउथ, मुंह खोलो, ये भी खोलता ये भी खोलता। मतलब इस पोएम में, इस रेम के अंदर बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन बाप वहां पर करेक्शन नहीं कर रहा है, और न टीचर पढ़ाने वाली एक करेक्शन करती कि भाई बेटा इस पोएम में, इस रेम में जो है झूठ बोल रहा बच्चा, से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई टीचर करेक्शन करने वाले नहीं। क्यों? खुद टीचर को भी इतना डीप लेवल में नॉलेज नहीं होता है कि इस रेम्स में हमें झूठ के बारे में सिखाया जा रहा, हमें करेक्शन करना चाहिए। कोई सिखाने वाला नहीं है, ये बच्चे सीख कर आते हैं। अब हम अपने बच्चों को दीनी अगर तरबियत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये मरे दम तक उनके पास रहने वाली चीज है। और याद रखो दोस्त, आज हमें अपने बच्चों के दीन को बचाने के लिए इन बच्चों को शुक्रगुजार बनाना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड इनमें पैदा करना जरूरी है। क्या शुक्रगुजारी पैदा करेंगे? आप अपने घर के माहौल से शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करेंगे। आप खाने बैठे हुए हैं, आपकी बेटी पानी ला कर दी, शुक्रिया बेटा। आप बैठे हुए हैं, आपके बेटे ने प्लेट ला कर दिया, शुक्रिया बेटा। आपकी बीवी ने जो है खाना ला कर रखा, शुक्रिया बेगम। आपके बच्चों ने जूते लाया, शुक्रिया बेटा।
आपके बच्चे कुछ भी आपको करते हैं, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा, ये आप कहते रहेंगे ना, तो ये हैबिट आपके बच्चों में आने वाली है, आपके बच्चों में आने वाली। बेटा आप जो है टीचर से आज जाकर कहो, बेटा शुक्रिया मैम, आज आपने हमको सिखाया। हम बच्चों को सिखाना, आप टीचर का शुक्रिया अदा करो बेटा, आप आया का शुक्रिया अदा करो बेटा। क्यों? आया आपके रूम को साफ करने वाली होती है। आप वॉचमैन का शुक्रिया अदा करो बेटा। क्यों? वॉचमैन आपको निगरानी करते रहते हैं। बेटा ऑटो वाले अंकल को शुक्रिया अदा करो, क्यों? आपको सेफली लेकर जा रहे हैं। आप बस वाले ड्राइवर अंकल को शुक्रिया अदा करो, क्यों? आपको सेफ्टी लेकर जा रहे हैं। आप जो है कहे भी जाओ, अपने बच्चों को शुक्रगुजार बनाओ मेरे दोस्त, सिखाओ उनको, समझाओ, हर एक का शुक्रिया अदा करना है। वॉचमैन का भी करना है, आया का भी करना है, टीचर करना है, प्रिंसिपल करना है, ऑटो ड्राइवर करना है, और बस वाले ड्राइवर अंकल करना है, ट्रेन करना है। हर जगह अपने बच्चों को शुक्रिया का रिमाइंड करते हो, बस इंशाल्लाह हमारे बच्चे शुक्रगुजार बंदे बनेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारे बच्चों के अंदर अच्छी आदतें पैदा करना जरूरी। देखो यार दोस्त, दीन अच्छी चीजों का मजमुआ है, दीन अच्छी चीजों का मजमुआ है। एक ये क्या कहते हैं उसको, एक बंडल है, एक पैकेज है। दीन क्या है? अच्छी चीजों का पैकेज है। तो हम अगर अच्छी चीजें अपने बच्चे में ऐड करते जाएंगे ना, दीन स्ट्रांग होता जाएगा, दीन स्ट्रांग होता जाएगा। और जितनी बुरी चीजें हम ऐड करते जाएंगे बच्चे में, ये ऐड होती जाएंगी, दीन कमजोर होते जाता है। आप अच्छाई को ऐड करते जाओ, दीन बच्चों का स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छी आते शुक्रिया अदा करना है बेटा। हम खाना बैठे हुए हैं, बेटा ये माउस कितना अच्छा है माशाअल्लाह, किसने पैदा किया बेटा? अल्लाह ने पैदा किया। इसका रंग किसका लाया? किसने लाया बेटा? अल्लाह ने लेकर आया। अनार, बेटा ये दानों कैसे जोड़ा अल्लाह देखो बेटा। बेटा आप काउंट कर सकते क्या? नहीं कर सकते, कितना अच्छा जोड़े हैं दाने को। बेटा आप दाने को लेके आप जोड़ के देखो, जोड़ सकते आप? नहीं जोड़ सकते आप। कलर कितना परफेक्ट है, दाने कितने परफेक्ट बैठे हुए हैं। ये जाम है, ये आम है, ये सेब है, ये चिक्कू है, ये सपोटा है, ये अंगूर है। ये बेटा किसने दिया हमको? अल्लाह ने हमको दिया है। अच्छी हैबिट हम बच्चों को सिखाना है, अच्छी आदतें पैदा करना है। जल्दी उठाओ बच्चों को, गुड हैबिट। हर दिन नहाना सिखाओ, गुड हैबिट। हर दिन ब्रश करना सिखाओ, गुड हैबिट। हर दिन अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े दो बच्चों को, गुड हैबिट। हर दिन बालों को कंघी करना सिखाओ बच्चों को, गुड हैबिट। स्कूल को भेजेंगे, मदरसे को, मकतब को जहां भेजेंगे, नीटनेस आपके बच्चे नजर आना। आपके बच्चों को देखने के बाद हर एक के दिल में मोहब्बत पैदा होना, उनके स्टाइल को, उनके अंदाज को, उनके लिबास को, उनके चेहरे से, उनके जो है उनके रहन सहन से लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होना। इस तरह ये कौन कर सकते हैं? मां और बाप ही कर सकते हैं। करना होगा। अच्छी हैबिट जब मजबूत हो जाएगी ना, दीन खुद ब खुद उनका मजबूत होता जाएगा इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को मसाजिद से जोड़ें, मस्जिद को लेकर आएं, प्रोग्राम में लेकर जाएं, जहां जलसा होता वहां लेकर जाएं। और अगर आपके बच्चों की छुट्टी है, आपके वर्क प्लेस पर आप लेकर जाएं, बेटा ये हमारी ऑफिस है, ये हमारा कारखाना है, ये हमारा जो है ये हमारी कंपनी है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा फुला फुला। अपने वर्क प्लेस पर लेकर जाएं उसको, अपनी वर्क कल्चर को समझाएं, अपने दोस्तों से मिलाएं, उलमा से मिलाएं, बड़े लोगों से मिलाएं, सलाम करने तरीका सिखाएं। दोस्त ये आप नहीं करोगे ना, नहीं, ये पैदा होने वाली चीज नहीं है, आप करना पड़ेगा। अगर अच्छा चाहते हैं आप, तो ये सारी चीजें हमें करना पड़ेगा। आपका बच्चा स्कूल चला गया और आप घर में फ्री हैं, तो आपका बच्चा हर दिन ऑटो में जा रहा है, आज आप फ्री हैं, तो ऑटो वाले से कहना कि भाई आज तुम मत लेकर जाओ, मैं छोड़ के आऊंगा। जब आप छोड़ के आते हैं ना स्कूल को, तो उस बच्चे में अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। आज आपका ऑटो वाला लेकर चला गया, आप वापस जल्दी आ गए, टाइम है आपके पास, आज ऑटो वाले से कहेंगे भाई आज मत लाओ, मैं लेकर आऊंगा अपने बच्चों को, आप जाओ लेकर आओ। जब आपको देखता है बच्चा दोस्तों के साथ, अपने जो है कलीग के साथ, क्लासमेट के साथ, उसमें अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आपसे मोहब्बत पैदा होती बच्चे के अंदर। अगर आपसे मोहब्बत हो गई बच्चे को, तो आप जो बोलेंगे बच्चा सुनेगा, जैसे बोलेंगे बच्चा इनसे सुनेगा इंशाअल्लाह। और हम
اپنے بچوں کے آج پرابلم یہ ہے کہ دوست آج ہم لوگ صلاحیت پر توجہ نہیں دیتے, مارکس پہ زیادہ ہم توجہ دیتے ہیں. یہ پرابلم ہے پوری امت کا, یہ مسلم نان مسلم سب کا یہ حال ہے. آج میرے بچے کو صلاحیت کتنی ہے اس میں, اس پہ غور کرو دوست. مارکس زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں. آپ نے 10th کیا, کتنے مارکس, اس مارکس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے 7th میں مارکس لیا, اس میں آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے 6 میں 100% مارکس لیا تھا, اس مارکس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اگر صلاحیت اگر آپ کی ہے تو وہی آپ کا ساتھ دینے والی ہے. تو صلاحیت پر توجہ دیجئے, مارکس کے پیچھے توجہ مت دیجئے. صلاحیت, اور اپنے بچوں سے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر توقع مت کیجئے. میرا بچہ 97 لے کر آیا, نہیں ابھی سیٹسفیکشن نہیں آ رہا, نہیں, پریشر مت بڑھو اس پر, اس کے مینٹلی ٹارچر مت کرو, مینٹلی پریشر اس پر مت ڈالو. جو لا رہا ہے بیٹا کوئی بات نہیں, مارکس کم ہے, لیکن بیٹا آپ کی اسپوکن انگلش کیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے بیٹا, آپ کا میتھس کیسا ہے وہ امپورٹنٹ ہے بیٹا, آپ کو پرابلم سالو کرنے آتا نہیں آتا وہ امپورٹنٹ ہے بیٹا. صلاحیت پر توجہ دیجئے, مارکس پہ توقع کر کے بچے آج ڈپریشن میں جا رہے ہیں. بچے آج جو ہے احساس کمتری میں جا رہے ہیں صرف مارکس کی وجہ سے, ماں باپ کے سیٹسفائی نہیں ہونے کی وجہ سے بچے آج ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں. اور اسی طرح دوست یہ بچوں کو بنانے میں بگاڑنے میں سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں. دوست میرا بچہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس کے ساتھ واپس آ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس کے ساتھ جو ہے اٹھ رہا بیٹھ رہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوستی ہی بچوں کو بناتی ہے, بگاڑتی ہے. آپ کسی بھی سگریٹ پینے والوں سے پوچھیں گے, آپ کیا وہ خود بخود سگریٹ پینے والا بنا؟ نہیں, اس کا کوئی نہ کوئی دوست پینے والا تھا. ارے بھائی لے ایک بار دیکھ رہے بھائی, دیکھ نکو پی تو خالی دیکھ لے, چیک کر لے. وہ سگریٹ پینے والا آج تک خود بخود سگریٹ کبھی نہیں پیا, نہیں سگریٹ کا عادی بنا, وہ صرف دوستوں کی وجہ سے سگریٹ کا عادی بنا. کوئی شراب پینے والا خود بخود شراب پینا نہیں سیکھتا, دوستوں سے ہی شراب پینا سیکھتا ہے. کوئی بچہ فون کو میس یوز خود بخود نہیں کرتا, کوئی دوست اس کو بولتے رہتا یہ دیکھو وہ کرو یہ کرو ایسا کرو ایسا, اس کو سن کے ہی وہ کرنا شروع کر دیتا, خود سے کبھی نہیں کرتا بچہ. بچے سپنج کی طرح ہوتے ہیں, یہ سپنج کو شراب پہ رکھو جذب کر لیتا ہے, چائے پہ رکھو جذب کر لیتا ہے, دودھ پہ رکھو جذب کر لیتا ہے, پانی پہ رکھو جذب کر لیتا ہے, تیل پہ رکھو جذب کر لیتا ہے, گندے پانی پہ رکھو جذب کر لیتا ہے, آب زمزم پہ رکھو جذب کر لیتا ہے. یہ بچے سپنج کی طرح ہیں, جس کے ساتھ مل گئے اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں, جس ساتھ مل گئے جس سے اٹھ کے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اس کو, اس کی نیچر کو, اس کی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں بچے ہمارے. تو سپنج کی طرح ہوتے ہیں. دوستی کس سے کر رہے ہمارے بچے, چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو, اس پر نظر ہونا چاہیے, باپ کی بھی ماں کی بھی ٹیچر کے بھی سب کی ہونا چاہیے انشاءاللہ. اگر ایسا ہم کریں گے ہم اپنے بچوں کو مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوست آج ہمارے بچوں کو پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ بھی سکھانا ضروری ہے آنے والے حالات میں. دوست ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسا کرتے معلوم, اپنا بچپنا سناتے ہیں. بیٹا جب ہم بچپن میں تھے ہم پیدل جاتے تھے. میں کیا کروں ابو, ٹھیک ہے وہ پیدل جاتے وہ آپ کا پرابلم ہے. نہیں بیٹا ہم جب اسکول جاتے تھے نا تو ہم بس میں جاتے تھے, ہم سائیکل پر نہیں جاتے تھے. ہم جب رہتے تھے نا ہم جو ہے 6 کلومیٹر پیدل جا کے اسکول جاتے تھے. ہم خالی ایک کتاب لے کے جاتے تھے, ایک پین ہمارے پاس رہتا تھا, ایک ہی جوڑ ہمارے پاس کپڑے رہتے تھے, ہم چپل کے بنا جاتے تھے. وہ 30 سال پہلے پرانے قصے سنا کے اپنے بچوں کو ٹائم ویسٹ مت کریں. اپنی میں وہ نہیں سوری وہ زمانہ گیا. تربیت کرنے کا اندازہ بدل چکا ہے. اپنے پرانے حالات کو سنا کر آج اگر آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں. جس سے کچھ نہیں ہوتا اس کو دے کے کوئی فائدہ نہیں. اس کو طبیعت خراب مت کرو. ڈاکٹر کیا کرتے معلوم, سمجھ میں نہیں آیا
कुछ न कुछ टैबलेट चिपका देते हैं उसको। ये है ये, लेकिन वो टैबलेट देने से क्या उसका रियल फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कि भाई यहां आया बगैर टैबलेट के मैं भेजा तो इन्हें क्या समझता कि उन्हें मुझे डॉक्टर मानता नहीं मानता, डॉक्टर से नहीं मानता, फिर मुझे उन्हें कुछ न कुछ चिपका देता, समझे ना? और वैसा हमारा भी पिछली बातें सुनाना कोई फायदा पहुंचाने वाली चीज नहीं है। आगे 30 साल के बाद क्या हालात होने वाले हैं उसको नजर में रखते हुए तरबियत करें आप। अगले 20 साल के बाद क्या हालात आने वाले हैं उसको नजर में रखते हुए तरबियत करें आप। अगले 40 साल, आज मेरा बेटा 10 साल का है, अगले 20 साल के बाद क्या होने वाला है, 30 साल के बाद क्या होने वाला, वो हालात को पेश नजर रखते हुए आपको तरबियत करना होगा। अगले हालात में ये पेट्रोल वाली गाड़ियां खत्म होने वाली हैं, हां, उसके हिसाब से बच्चों को तरबियत देना है। आने वाले हालात में पेपर पेन का वजूद खत्म होने वाला है, एक टैब रहेगा, पेंसिल रहेगी, टैब से सब कुछ वो काम करता जाएगा। ये हार्ड बुक ये खत्म होने वाले, ओनली सॉफ्ट बुक आने वाले हैं। ये फोन में जो आज बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं ना, आने वाले हाथ में चार्जिंग नहीं रहेंगी। जैसे घड़ी की बैटरी साल तक चल रही है ना, वैसे इसकी बैटरी आने वाली है जो साल तक चलने वाली है। भाई आने वाले हालात को रखते हुए तरबियत करें अपने बच्चों की और उसके लिए तैयार करें। और आने वाले हालात, अब हम डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आने वाले हालात में डॉक्टर और हज्जाम दोनों बराबर होने वाले हैं। आने वाले हालात में डॉक्टर और हज्जाम दोनों बराबर होने वाले हैं। ये डॉक्टर और टेलर दोनों बराबर होने वाले हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों की सलाहियत को रखते हुए तरबियत करें। और याद रखो दोस्त, दुनिया में बच्चों की सलाहियत को जानने के लिए जो एग्जाम हमारे, यानी ये टेस्ट, वो ये FA1 है, FA2 है और SA1 है, SA2 है, ये हाफ ईयरली है, ये एनुअली है ना, इस एग्जाम से बच्चों की सलाहियत को पहचान ही नहीं सकते हम लोग। इस एग्जाम से बच्चों की क्वालिटी को समझ नहीं सकते हैं। क्यों भाई? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बंदर है और ये मछली है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ओके? अब इन तमाम से बोल रहे हैं कि भाई तुम झाड़ पे चढ़ो, ये सब से कह रहे तुम झाड़ पे चढ़ो। बंदर चढ़ जाएगा, मछली नहीं चढ़ेगी, हाथी नहीं चढ़ेगा, ये घोड़ा नहीं चढ़ेगा, ये कुत्ता नहीं चढ़ेगा, सिर्फ बंदर चढ़ेगा। हम क्या बोल रहे, तुम सलाहियत वाले नहीं हैं, तुम सलाहियत, तुम मेहनत करना, तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाए, तुम क्या कर रहे, तुम क्या करो। भाई इसको चढ़ने का इम्तिहान लो, इसको तैरने के इम्तिहान लो, इसको उठाने के इम्तिहान लो, इसको दौड़ने के इम्तिहान लो, इसको अलग अलग लो। क्या ऐसा सिस्टम है? नहीं। एक क्लास में एक ही एग्जाम होता है और उसमें भाई दौड़ने वाला भी है, खाने वाला भी है, उठाने वाला भी है, पटकने वाला भी है, खेलने वाला भी, सब है। लेकिन बोल रहे हैं झाड़ चढ़ो, बोल रहे हैं तो झाड़ एक ही चढ़ सकता, बाकी सब नहीं चढ़ सकते, तो बाकी सब के फेल है? नहीं। लेकिन सिस्टम हमारा एग्जाम का ऐसा बनते जा रहा है। तो दोस्त, एक्टिविटी के थ्रू ही हमारे बच्चों के असल क्वालिटी को, असल सलाहियत को हम समझ सकते हैं। एक्टिविटी के थ्रू ही हो सकता है, एग्जाम के थ्रू होने वाला नहीं है। मौका दो अपने बच्चों को, हर फील्ड में आगे बढ़ाओ अपने बच्चों को, खेल में आगे बढ़ाओ, साइंस में आगे बढ़ाओ, मेडिकल में आगे बढ़ाओ, किस में आगे बढ़ सकता आजमाओ। अभी डिसाइड मत करो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं, सॉरी, अभी डिसाइड मत करो आप लोग। हर चीज का फील्ड में आप तजुर्बा करके देखो, उसके बाद वो जिसमें फिट हो जाएगा उसमें वो भागेगा, आप रोकेंगे तब भी भागता रहेगा वो। बस बेटा नहीं अब्बू और पढ़ना चाहता हूं, मैं और करना चाहता हूं, बोलता हूं, तब ये है असल कामयाबी इंशाअल्लाह। और दोस्त, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मैं बाइक में जा रहा हूं, पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है, 40 में जा रहा हूं, 50 में जा रहा हूं, मेरा बेटा गिर गया, क्या मैं गाड़ी को वैसे भगाता रहूंगा या रोकूंगा? पूछो अपने आप से। नहीं मौलवी साहब, मेरा बेटा गिर गया, मैं कैसे आगे जा सकता हूं? मैं रुकूंगा, उसको उठाऊंगा, आगे नहीं जा सकता मैं। ओके ठीक है। आप जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा जो है पानी का बोतल नीचे उतरा था, अब नीचे उतरा, ट्रेन छूट गई, क्या आप सुकून से बैठेंगे अपने ट्रेन में?
آپ کا بیٹا مس ہو چکا ہے, بوتل کا پانی لانے نیچے گیا, ٹرین چھوٹ گئی, تو کیا کریں گے آپ؟ کیا سکون سے بیٹھیں گے آپ؟ نہیں. آپ کار میں جا رہے ہیں اپنی فیملی کو لے کے, آپ کے میڈم آپ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک بچہ جو ہے کار کا ڈور اوپن کرا نیچے گر گیا, کیا آپ ایسی کار لے کر جائیں گے یا رکیں گے آپ؟ ظاہر بات ہے کوئی باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے, بائک چلاتے ہوئے بیٹا گر گیا, اس کو معلوم میرا بیٹا گرا ہوا ہے, لوگ بول رہے بھائی بچہ گر گیا پھر بھی لے کر جا رہا, ایسا دنیا میں کوئی باپ شاید پیدا نہیں ہوا. یہ بات میں کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس سے رزلٹ کیا نکالنا چاہ رہا ہوں؟ رزلٹ یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے, مس ہو جاتے ہیں, تکلیف ہو جاتی ہے, چھوٹ جاتے ہیں, تو ہم اس کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھتے, اس کو لے کے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور رک جانا چاہتے ہیں. دوست ایسا بھی وقت آنے والا ہے, یہ پل صراط ہے, اس پر ہم بھی گزرتے رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی گزرتے رہتے ہیں, ہماری بیوی گزرتے رہتی ہے, اور ہمارے ماں باپ گزرتے رہتے ہیں. اگر اس گزرتے کے ٹائم میں اگر میرا بیٹا پل صراط سے نیچے گر جائے تو, اگر میرے ماں باپ اگر پل صراط سے نیچے گر جائیں تو, اگر میری بیوی پل صراط کے نیچے گر جائے تو کیا ہوگا؟ جس طرح ہم آج دنیا کے اندر گاڑی پہ میرا بیٹا گر جاتا ہے, بیوی گر جاتی, ماں باپ گر جاتے ہیں, تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا, ان کو لے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن ایسا حالات آنے والے ہیں جس میں اگر وہ گر جائیں تو کتنا دکھ ہو سکتا ہے. تو وہ نہیں گرنا, وہ لوگ نیچے نہیں گرنا, میرے ماں باپ پل صراط سے نیچے نہیں گرنا, میری بیوی پل صراط سے نیچے نہیں گرنا, میرے بچے پل صراط سے نیچے نہیں گرنا, اس کی فکر کرو میرے دوست. وہ فکر یہی دین ہے. آج ہم دین سکھائیں گے, انشاءاللہ ہمارے بچے ہم سے آگے رہیں گے. انشاءاللہ پل صراط پہ ہمارے بچے ہم سے آگے رہنا. وہ بچے جا کے اللہ سے کہنا ہے, اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے تعلیم دی, جنہوں نے مجھے دین سکھایا, جنہوں نے مجھے حافظ بنایا, جنہوں نے مجھے اخلاق والے بنایا. اللہ میرے ماں باپ کے بغیر میں جنت نہیں جا سکتا, میرے ماں باپ کو میرے ساتھ بھیج. بچوں کو ایسے بنانا انشاءاللہ, اور یہ میں اور آپ مل کر کرنے سے ہو سکتا ہے. چھوڑ دو گے کاروبار اچھا چلے گا ہمارا انشاءاللہ, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, بزنس سے چلے گا انشاءاللہ, سب کو اچھا ہوگا, لیکن صرف یہ 50 اور 60 ایئرز کی لائف ہی اچھی ہوگی, اس کے بعد لائف پرابلم میں آئیں گے ہم لوگ. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ساتھ ساتھ واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. کیوں؟ وقودھا الناس, اس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پیارے پیارے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. ان بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ دین بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.